Hello friends, my name is Neha. In today's lesson, I will discuss about the tips that can help you to solve sentence completion in the reading module. There are various tips that can help you to solve easily these types of questions. So let's get started. Firstly, read the instructions carefully. How many words they have asked you to give, like one word answer, no, not more than 2 words, or not more than 3 words. And after that, read the incomplete sentence carefully and try to think about the keywords and try to predict the answers, and also try to rephrase the sentence so that you can easily locate the answer. Then after reading the question, then try to locate the answer in the given information in the passage. If you are unable to find out the proper location, then go back to the information question section again and read the question once again. Remember that the answer should be grammatically correct. Check that the word that fits in the information, whether it is a noun, verb, adverb or adjective, this will definitely help you to locate your answer in the passage. One more thing that you have to remember, that all the answers are always in the sequence. You will always find your question number 2 answer after the answer of first question. Whenever you scan for your answer, make sure that you are thinking about paraphrasing and synonyms. Most important thing is that read the question before reading the text. So let's solve a paper to clear out all the doubts by solving a paper of general training. Let's start with solving a paper, Cambridge Book 14, General Training. Let's open test 2, sentence completion. Choose only one word from the text for each answer. Firstly, let's read the question. If employees are unsure what their company wishes them to wear for the work, they should request. मीन्स एम्प्लॉयज़ अनश्योर हैं कि कंपनी क्या चाहती है कि वो वेयर करें, तो उनको क्या रिक्वेस्ट करना है कंपनी को. लेट्स रीड द इंफॉर्मेशन. योर कॉन्टैक्ट में स्टेट दैट यू नीड टू ड्रेस इन द सर्टेन मैनर, वियर अ यूनिफॉर्म. मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात हो रही है. योर कॉन्टैक्ट माइट बी स्टेट दैट यू नीड टू ड्रेस स्मार्टली रादर देन स्पेसिफाइंग any particular garment. As you might well, conflicting ideas means unsure. You are unsure of what count as smart. You should ask means you should request your employee for clarification. So the answer is clarification. So यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स क्या थे जो मैच हुए थे? एक तो इंश्योर, एक वेयर था, एक रिक्वेस्ट था. वो किससे मैच हुआ था कि कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ थे, यानी अनश्योर थे. उन्होंने रिक्वेस्ट किसको किया? एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट किया था, उनसे पूछा था कि किस चीज़ की क्लैरिफिकेशन लेनी थी उनको ड्रेस के बारे में. ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16. सम कंपनीज ऑफर देयर एम्प्लॉयज़ अ डैश. कुछ ऑफर कर रही हैं कंपनीज व्हेन दे बाय आइटम्स टू वेयर फॉर. मतलब वो जब बाय करेंगी वियर करने के लिए, तो उनको कुछ ऑफर किया जाएगा वहाँ पे. लेट्स सी द इंफॉर्मेशन नेक्स्ट. Many employees that have a strict dress code choose to provide clothing or a discount. मतलब वो जब बाई करने के लिए आएंगे तो उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या ऑफर किया जाएगा? डिस्काउंट ऑन क्लोथिंग. सो द आंसर इज डिस्काउंट. Let's see question number 17. Employees who fail to wear protective clothing when required could be subject to dash procedure. मतलब जो एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वेयर करने को फेल हो गए हैं, उनको एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा. ठीक है, सब्जेक्ट टू. तो लेट्स चेक द इंफॉर्मेशन. हमने यहाँ तक पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. However, this is not a necessary compulsory for the employers. It is a factor you need to consider when taking the job. यहाँ पे नहीं है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात हो रही है. प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट. Employers can tell you to put on a protective clothing equipment. If you don't, मतलब आप उसके प्रोसीजर के थ्रू नहीं गए, योर एम्प्लॉयज़ एंटाइटल्ड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन. टेक मीन्स कि आपको किस प्रोसीजर के एक्शन, मतलब प्रोसीजर, एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा. कौन सा प्रोसीजर है वो? डिसिप्लिनरी. डिसिप्लिनरी एक्शन. तो हमारा आंसर हमें मिल गया. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18. एम्प्लॉयज़ ought not to be dash because of protective clothing or equipment.
एम्प्लॉयज़ को क्या नहीं होना चाहिए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ मतलब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कि डिसिप्लिनरी एक्शन व्हेन कैन include excluding from you the workplace. Now let's see question number 18. Employers not ought to be in, मतलब एम्प्लॉय किस में नहीं होने चाहिए, नॉट ought to be in डैश बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की वजह से, मतलब उनको क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पड़ी थी, उसके आगे पढ़ लेते हैं। विच कैन इंक्लूड एक्सक्लूडिंग यू फ्रॉम द वर्क प्लेस, आप मतलब अगर आपका डिसिप्लिनरी एक्शन ले तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू बी कॉपरेट विद द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कॉपरेट करो, करेक्टिवली यूज़ वर्क आइटम्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, उसको यूज़ करो। नॉट इंटरफेयर विद एंड मिस यूज़ एनीथिंग प्रोवाइडेड फॉर योर हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके इंटरफेयर मत करो, उसका मिस यूज़ मत करो। ऑफ कोर्स एनी प्रोटेक्टिव गियर हैज़ टू बी फिट एंड अप्रिशिएट फॉर द सिचुएशन, मतलब डाउटफुली जो भी आपको इक्विपमेंट मिला है वियर करने के लिए वो बिल्कुल फिट होना चाहिए सिचुएशन के लिए। इफ़ इट शुड नॉट कॉज यू पेन, मतलब आप किस में नहीं होने चाहिए, पेन में। तो हमारा आंसर क्या है, पेन, मतलब द एम्प्लॉय शुड नॉट बी इन द पेन बिकॉज ऑफ, मतलब उनको पेन नहीं होना चाहिए इक्विपमेंट की। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19. इट इज़ द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट देयर इज अ सुटेबल प्लेस फॉर द डैश ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आ गया, एंड सुटेबल प्लेस, एक प्लेस की बात हो रही है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए। तो देख लेते हैं लोकेशन इसकी, यहाँ तक पढ़ा था, आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ इट डज यू शुड नेगोशिएट अल्टरनेटिव इक्विपमेंट फॉर द अरेंजमेंट, अगर ऐसा तो नेगोशिएट करोगे। मतलब इंटरनल हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे फॉर द प्रोटेक्टिव clothing you need. If employer buy the gear, you are entitled to keep it when you leave. The obligation to maintain protective clothing lies with the employer. Employer की obligation है कि उसको maintain करके रखना है। The employer is also required to provide an appropriate storage, मतलब ये place की बात हो गई यहाँ पे। For to keep the protective equipment in which it is not used, मतलब जब वो यूज़ में ना हो तो उसके लिए एक स्टोरेज प्लेस देना पड़ेगा जहाँ पे इक्विपमेंट रखा जाएगा। सो द स्टोरेज विल बी द, it is a company's responsibility to ensure that is a suitable place for the storage of protective equipment. Storage means storage में रखा जाएगा protective equipment. Let's see question number 20. Employees who work with certain types of dash may have to remove jewelry to avoid potential injuries. Employees जो certain type की किसी चीज़ के साथ work कर रहे हैं, certain type of dash, ठीक है, they may have to remove, उनको रिमूव करनी पड़ेगी ज्वेलरी, इंजरी से को अवॉइड करने के लिए। तो ज्वेलरी में होगा बैनिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वेयरिंग ज्वेलरी एंड लूज क्लोथिंग मस्ट बी जस्टिफाइड टू प्रिवेंट द पोटेंशियल hygiene hazard if you work in an area of food protection and area which need to be kept sterile. Likewise, your employees can judge that loose jewelry may constitute a snagging hazard if you operate machinery. मतलब क्या था कि जो किसके साथ काम कर रहा है, सर्टन टाइप ऑफ ऑपरेट मशीनरी मीन्स किसी सर्टन टाइप ऑफ मशीनरी के साथ वर्क कर रहा है, तो दे मे रिमूव ज्वेलरी टू अवॉइड पोटेंशियल, तो उनको कोई भी हैज़र्ड होने से बचाने के लिए, स्नैगिंग हैज़र्ड से बचाने के लिए उनको वो ज्वेलरी को रिमूव करना पड़ेगा। तो द आंसर इज मशीनरी. So friends, I hope my video will be helpful for you to solve the sentence completion questions in the regime module. If you have any doubt and queries, you can ask me in the comment section. Thank you. Have a nice day.